student, welcome to समझो केमिस्ट्री डिटेल में. I hope all of you are very busy in the last minute revision because your board exams are just knocking at the door. तो CBSE ने भी सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया. सो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे CBSE सैम्पल पेपर में से कुछ क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल द MCQs, 1 mark MCQs जो है, there are 18 questions. Total there will be 35 questions in the paper, and in section A there will be 18 MCQs, each carrying 1 mark. So one by one we will solve the MCQs. The first question is the major product of acid catalyzed dehydration of 1-methyl cyclohexanol is. ये आपके ऑप्शंस है. सबसे पहले 1-methyl cyclohexanol का स्ट्रक्चर बनाते हैं. This is the structure of 1-methyl cyclohexanol. Now see acid catalyzed dehydration. Dehydration का मतलब आप समझते हो, 1 molecule of water will be eliminated, and acid catalyzed मतलब the acid will be present as catalyst over here. So for acid we always write H plus. So in presence of H plus, 1 molecule of water will be eliminated, and here also the dehydration of alcohol, it will also obey सेट-जेव्स रूल. सेट-जेव्स रूल क्या बताते हैं? सेट-जेव्स रूल बताते हैं कि जब कोई एल्केन फॉर्मेशन होना होता है तो जो highly substituted alkene, that is always the more stable one, and that will be the major product. Now see, it is a beta elimination reaction. चाहे वो अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन हो, चाहे अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन हो, it is beta elimination. Beta elimination means you can see OH group is attached to a carbon atom, so this carbon atom will be the alpha carbon atom, and beta carbon atom जो भी adjacent carbon atom है alpha के साथ, they all are the beta carbon atoms. So this is beta carbon atom, this is also beta carbon atom, this is also beta carbon atom. So from beta carbon atom hydrogen atom will go out, and from the alpha carbon atom OH group will go out. So this is how 1 molecule of water will be eliminated. Now see, तो OH ग्रुप तो अल्फा कार्बन एटम से जाना ही जाना है. आप बीटा कार्बन एटम कोई भी ले सकते हो, अगर ये वाला लेते हो या ये वाला लेते हो, प्रोडक्ट विल बी सेम. ओके, तो लेट अस सपोज बीटा हाइड्रोजन यहाँ से हम अगर एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से एक बीटा हाइड्रोजन अगर रिमूव हो गया तो ये आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा. डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और यहाँ आपका CH3 group as it is रहेगा. So this will be one product, and there is chance if the beta hydrogen is eliminated from this methyl group, there is a methyl group here also. ये methyl group के कार्बन एटम, ये भी बीटा कार्बन एटम ही है. So बीटा हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकते हैं और OH जो है अल्फा कार्बन एटम से जाएगा. तो another product is this. Double bond will be formed here, and this will be the another product. Now the question is, which one will be the major product? I already told you that this elimination will obey सेट-जेव्स रूल. सेट-जेव्स रूल के लिए आप देख लीजिए, ये जो कार्बन एटम है जिसके साथ एक मिथाइल ग्रुप है, इसको मैं इस तरह से आपको CH से स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ. C इसके साथ एक CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये सारे CH2 होंगे. तो देखिए ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से एक के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन एटम नहीं है, दूसरा के साथ एक हाइड्रोजन एटम है. सेट-जेव्स रूल के अकॉर्डिंग हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन मींस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जिसमें होगा वही होगा मेजर प्रोडक्ट. और ये वाला का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो C डबल बॉन्ड CH2, ये सारे CH2. तो इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी ये दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है और ये वाला कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम है. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ. दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेट-जेव्स रूल द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हियर it is highly substituted and there is lesser number of hydrogen atom as you can see here. So which option is correct here? See, the name of this compound will be what? 1-methyl cyclohexane. So number B, इसका नाम है 1-methylene cyclohexane. So this one will be the major product. Option B is the correct option.
This is the second question, students. In this question it has been asked, which one of the following compound is more reactive towards SN1 reaction? आपको पता है कि SN1 reactions they follow first order kinetics. तो इसमें दो स्टेप में रिएक्शन होते हैं. फर्स्ट स्टेप में जो आपका हैलाइड है इट अंडरगोज आयनाइजेशन और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होते हैं. तो अभी हम एक एक करके देखते हैं कि ये जो आपके हैलाइड्स दिए हुए हैं ये किस टाइप का हैलाइड है, इससे किस टाइप का कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है. द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, more faster will be the reaction. That means more reactive will be the compound towards the SN1 reaction. सबसे पहले नंबर ए में देखो जो हैलाइड दिया हुआ है ये है एलाइल हैलाइड. So it is CH2 double bond CH2 Br. जब ये आयनाइज करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं ये वाला कार्बोकैटायन. तो ये वाला कार्बोकैटायन जो है ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है एंड इट इज स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस. कैसे ये देख लीजिए. ये जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये कार्बन में जाएगा और इन दैट केस ये जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. CH2 ये C पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH और ये CH2 के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. So this is how this carbocation is having resonance stabilization. Now let us come to the second one, number B, C6H5 CH2 Br. This upon ionization in the first step will produce this carbocation C6H5 CH2 plus. Now this is benzyl carbocation and this is again having the resonance stabilization. तो इसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे. ये प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग के अंदर इसका इलेक्ट्रॉन को ये पुल करेगा. पुल करने से ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा. सो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा दिस वन. यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2. ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. अगला स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज होगी ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा. सो दिस विल बी द next resonating structure. So here in the para position there will be plus charge and the bond formation will be there and the bond formation will be here, double bond formation and CH2 this. Now in the next these pi bond electrons will come to this carbon atom and now the plus charge will be in this position, double bond formation will be here and here and now the last one the bonding electrons will come to this carbon atom and this structure will be formed. Here the double bond formation will be there. This will again become single bond H2 positive and then this and this. This is how we can see that the benzyl carbocation is having resonance stabilization. Now in the third structure number C, C6H5 CH C6H5 Br. This upon ionization will produce the carbocation this. So this will be the carbocation formed from this compound. Now you can see here there are two phenyl groups. So in this case there was one phenyl group and in this case there are two phenyl groups. So greater the number of the phenyl groups, greater will be the stability of the carbocation. जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हुआ था पूरा बेंजीन रिंग में, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बन के ऊपर जो है ये इस रिंग में भी डिस्पर्स करेगा, ये वाला रिंग में भी डिस्पर्स करेगा. सो दिस कार्बोकैटायन विल बी द मोस्ट स्टेबल वन एंड दैट्स व्हाई SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा नंबर C. So number C will be the most reactive one towards the SN1 reaction. This is the third question. Third question में पूछा गया है KMnO4 is colored due to. KMnO4 का कलर जो कि डीप पर्पल कलर है, इंटेंस पर्पल कलर है, उसका रीजन क्या है? Is it DD transition or these are the reasons? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन कोर 3d5 4s2. नाउ मैंगनीज KMnO4 में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? KMnO4 में मैंगनीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. सो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन, 3d से 5 इलेक्ट्रॉन सारे रिमूव हो गए. सो मैंगनीज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा आर्गन कोर 3d0 4s0. So as there is no electron in the 3d orbital, so DD transition
will not be there, dd ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा. Now the next option is charge transfer from ligand to metal. यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. इन केस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जो मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड है, ये जो ऑक्सीजन एटम्स है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से ऑक्सीजन क्या करते हैं, मोमेंटरीली, इट हैपेंस मोमेंटरीली, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर में से इलेक्ट्रॉन एक जो है मैंगनीज में ट्रांसफर कर देते हैं. तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है. KMnO4 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है. अगर एक इलेक्ट्रॉन मोमेंटरीली ये जो है मैंगनीज में ट्रांसफर कर देते हैं, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +6 में हो जाता है. दैट मीन्स मैंगनीज का रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का हो गया ऑक्सीडेशन. -2 से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो इसका खुद का हो गया -1, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसका, और इलेक्ट्रॉन छोड़ा मतलब ऑक्सीडाइज हुआ, और जो मैंगनीज है वो रिड्यूस हो गया +7 से +6. लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये मोमेंटरीली होता है, और जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे लिगैंड है मैंगनीज के साथ अटैच्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होती है फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैंगनीज, तो उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्साइट होना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को. एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो विजिबल रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. तो ये जो एनर्जी यहाँ पे चाहिए, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फोटोन ऑफ द येलो लाइट. तो येलो लाइट का फोटोन को जब ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है इससे मैंगनीज में, ऑक्सीजन से मैंगनीज में ट्रांसफर हो जाता है. और जो कलर वो एमिट करते हैं, उन कलर में मेनली रेड और ब्लू होगा, एंड दैट्स व्हाई द कॉम्प्लीमेंटरी कलर, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर जो एमिट होगा यहाँ पे, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन में पर्पल कलर यहाँ पे एमिट होगा, एंड वी विल सी इट पर्पल. तो दैट इज द रीजन व्हाई KMnO4 इज कलर्ड. सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. Charge transfer from ligand to metal. In this question it is asked, which radioactive isotope would have the longer half-life? 15O और 19O. ऑक्सीजन के दो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, किसका लॉन्गर हाफ लाइफ पीरियड होगा? तो उसके लिए आपको रेट कांस्टेंट वैल्यू बता दिया गया है 15O का और 19O का. यू कैन सी द वैल्यूज 5.63 into 10⁻³ सेकंड इनवर्स फॉर 15O एंड 2.38 into 10⁻² फॉर 19O. तो आप देख पा रहे हो कि जो 15O है उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो है इट इज स्मॉलर 5.63 into 10⁻³ सेकंड इनवर्स, एंड दैट ऑफ 19O is greater 2.38 into 10⁻² second inverse. So as the rate constant value of 15O is less than that of 19O, so rate of decay किसका slower होगा? रेट ऑफ डीके 15O का ही स्लो होगा, एंड दैट्स व्हाई 15O जो आइसोटोप है इट विल हैव ए लॉन्गर हाफ लाइफ पीरियड. आंसर हो जाएगा 15O. ओके, सो इसको इस तरह से भी देख सकते हो. आपको पता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 by K. K is the rate constant. So smaller the value of K, greater will be the value of T half. So in case of 15O, the value of K rate constant is smaller, and so T half value will be greater for 15O. तो 15O हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है नंबर ए. इन दिस क्वेश्चन देखिए आपको लैम्डा एम नॉट वैल्यू एसिटिक एसिड का दे दिया गया है 397 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. बोल रहा है कि यूजिंग द ग्राफ एंड द गिवन इंफॉर्मेशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOK विल बी. अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मिसिंग है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन लिखना चाहिए था. तो ये सैंपल पेपर है ना, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स इसमें तो होती है, लेकिन यू डोंट वरी, आपको बोर्ड का पेपर में कभी इस टाइप का जो है छोटे मोटे मिस्टेक्स भी नहीं मिलते हैं. तो यहाँ पे देखिए हमें कोलरशस लॉ पता है कि कोलरशस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन वो क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ द लिमिटिंग ionic conductivity of the cation and the anion each multiplied by the number of ions produced from one molecule of the electrolyte. So according to that you can write lambda m naught CH3COOK जो कि हमें निकालना है, that will be equal to what? lambda naught m CH3COO minus plus lambda naught m
K प्लस। अब हमें CH3COH का, KCl का, HCl का, इन सारे वैल्यूज HCl और KCl का वैल्यू जो हमें ग्राफ से मिल रहा है, CH3COH का वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखा है। सो वी कैन राइट कि लैम्डा एम नॉट CH3COOK ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट CH3COOH प्लस इसके साथ आपको K को लेना पड़ेगा, लैम्डा एम नॉट KCl और HCl को आपको माइनस कर देना पड़ेगा, लैम्डा एम नॉट HCl। कोरिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा एम नॉट CH3COOH को क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा एम नॉट CH3COOH इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट H प्लस। लैम्डा एम नॉट HCl इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा एम नॉट H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। लैम्डा एम नॉट KCl इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट K प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। लैम्डा एम नॉट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट K प्लस विल बी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट K प्लस प्लस माइनस लैम्डा एम नॉट H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। और हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम नॉट CH3COOK विल बी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट CH3COOH प्लस लैम्डा एम नॉट KCl माइनस लैम्डा एम नॉट HCl। तो देखिए CH3COH का वैल्यू हमें दे दिया गया है 390, सो 390 प्लस KCl का ये आपको ग्राफ से मिल रहा है 125 और 175 के बीच में है। सो ये डिफरेंस जो है 50 का है, तो बीच में अगर है तो 25 और इसके साथ ऐड हो जाता है, सो इट विल बी 150 माइनस लैम्डा एम नॉट HCl तो डायरेक्टली ये 425 वाला जो है लाइन को टच कर रहा है, सो इट विल बी माइनस 425। सो 540 माइनस 425, so it will be equal to, so this is the answer. So out of all these options which one is correct? A, B, C में से B is correct. देखिए इस क्वेश्चन में केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। It is said for the reaction A plus 2B producing AB2, the order with respect to A is 2 and with respect to B is nothing is given. So it is a mistake of the paper. तो not to worry, हम जो है B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर को 0 मानेंगे। मेन पेपर में तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया है, some mistake is there. What will be the change in rate of the reaction if concentration of A is doubled and B is halved? तो B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर तो कुछ था, इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है B का कॉन्सेंट्रेशन हाफ, लेकिन हमें जो है B का कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज वी आर हेल्पलेस, हमें B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नहीं बताया गया है, तो हम कंसिडर करेंगे ओनली A को, B को हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो अगर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A 2 है, देन व्हाट विल बी द रेट लॉ? रेट लॉ हो जाएगा रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। ओके, दिस विल बी द रेट लॉ। नाउ लेट अस सपोज, बिकॉज बाद में बोला है कि जो A है उसका कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल किया जाता है तो रेट में क्या चेंज आएगा। तो लेट अस सपोज लेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A is A mole per liter, small a mole per liter, then rate is equal to what? Original rate जो है आपका that is equal to K into A square. When concentration of A is doubled, then we can write concentration of A will be 2A mole per liter. So in that case अगर ये ओरिजिनल रेट है, इसको अगर हम रेट 1 बोल रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन A का डबल करने के बाद जो न्यू रेट होगा उसको अगर हम रेट 2 बोल रहे हैं, देन इट विल बी K इंटू 2A का होल स्क्वायर, सो इट विल बी 4 इंटू K इंटू A स्क्वायर। दैट मीन्स यू कैन सी ओरिजिनल रेट क्या था, K इंटू A स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन A का डबल करने के बाद जो न्यू रेट है ये क्या हो गया 4 इंटू K इंटू A स्क्वायर। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? नंबर ए ऑप्शन राइट होगा, that the rate increases 4 times. So this option will be the correct one, number A. This is the question from amines nitrogen containing functional group.
उसमें से बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर, बेसिक कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन यू कैन सी ब्यूटानामिन, इट्स अ प्राइमरी अमीन। एन जैसे हो गया, एन डाइमिथाइलिथेनामिन, इट इज टर्शियरी अमीन, and in ethylethanamine it is secondary amine. Now let us draw the structures. Butanamine first of all, now is number B and this is number C. So here you can see intermolecular hydrogen bonding इन तीनों में से किस में सबसे ज्यादा होना है? इन तीनों में से intermolecular hydrogen bonding will be maximum in the primary amine and minimum किस में? इसमें नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन एटम ही नहीं है। सो ये टर्शियरी अमीन है, 3 डिग्री अमीन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट देयर एंड हियर देयर इज वन हाइड्रोजन एटम, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लेस एज कंपेयर टू प्राइमरी अमीन। दिस इज योर 2 डिग्री अमीन एंड दिस इज 1 डिग्री अमीन। सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाट विल हैपन, द प्राइमरी अमीन्स इसमें जो मैक्सिमम जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसके कारण these molecules will be associated and so its boiling point will be highest. So the order in which हम इनको लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। So it will be B, it will be least, B से किसका ज्यादा होगा? C का ज्यादा होगा जो कि सेकेंडरी अमीन है, तो B से C का ज्यादा, C से भी ज्यादा होगा A का। So this will be the order. तो इस क्वेश्चन में आप देखिए ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया है। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड इन द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में CFAC से कैलकुलेशन करने का क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। सो फिर भी अगर दिया है तो हमें करना है। तो देखिए बोल रहा है कि CFAC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ COCl6-3 इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो CFAC फॉर COCl4- विल बी, ये ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है। अभी देखिए ये जो COCl6-3 ये जो कंपाउंड है, इसमें आप कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर देख पा रहे हो, इट इज 6, सो इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये जो COCl4- ऑब्वियसली इट विल बी टेट्राहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया है CFAC तो ये स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, बिकॉज टेट्राहेड्रल के साथ ही एक रिलेशन है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। सो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में है वो काफी स्मॉल है, बिकॉज जो एनर्जी गैप है 2 d ऑर्बिटल का जो 2 सेट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, उनको हम बोलते हैं T2G और EG, और ये जस्ट रिवर्स हो जाता है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स T2G का एनर्जी लो है और EG का एनर्जी हाई है, लेकिन इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस T2 का एनर्जी हाई है और E का एनर्जी लो है। लेकिन ये जो स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, इट इज मच स्मॉलर देन कंपेयर्ड टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड द रिलेशन, द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल, जो रिलेशन दोनों के बीच में है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बीच में, वो ये है लैम्डा T इज इक्वल टू 4/9 लैम्डा O। तो लैम्डा O आपको दे दिया गया है, इट इज 18,000 centimeter inverse. So just put the value delta T is equal to 4/9 into 18,000. So it will be 2,000. So 4 से मल्टीप्लाई होने से ये हो जाएगा 8,000 centimeter inverse. So option B is the correct answer.